which we have already done and which are very important. And one more important such life process is reproduction, which we are going to do today, or start rather, and it will take, I think, a few more classes to complete it. It's a long chapter. So what do you mean by reproduction? To remain alive and to continue its species, a new organism of the same species is formed, that is known as reproduction. So formation of a new organism of new species by earlier existing organism is known as reproduction. Okay, so आप लिखें define reproduction. Please put on your videos. Let me see if you all are writing. सब लोग करो on video. दिख रहे हैं ना? Rahul, you are writing? अगर किसी का वीडियो नहीं वर्क कर रहा है तो इट्स ओके, बट कीप राइटिंग. एक्सक्यूज मी मैम, क्या ये कल आपने जो वीडियो डाला है ना, ये अपने क्लास का, हाँ. उसमें वो जो आंसर था डिफरेंस का, वही. For those who have not written the definition, I'll repeat it for you. Formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. ठीक है? Now when we are talking about reproduction, okay? There will be two methods in which reproduction occurs in living organisms. Reproduction occurs in non-living organisms also? No. No. It will occur No, ma'am. only in living organisms. There are two types of organisms, the unicellular organisms and the multicellular organisms. पता है ना? What are the two types of organisms? Living organisms, we normally divide them broadly into unicellular and multicellular. है ना? और we are talking about the life process reproduction, which occurs in all the living organisms. What is the reproduction? The formation of the new species by the existing organism is called as reproduction. Okay, and it will occur by two methods. One is asexual reproduction and other is sexual reproduction. Now, what is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction? In asexual reproduction, only one parent is involved, and in sexual reproduction, two parents are involved. That is the main difference in this. Okay, now again, it will be different in unicellular organisms and multicellular organisms. There are many types of which we are going to do. And in your syllabus, we have fission, binary fission and multiple fission. Then we also have the other types. Okay, so we will be seeing that. Just give me a. Now we will be having asexual reproduction, in which we are talking about the unicellular organisms. By the time I write this, can you tell me what are the examples of unicellular organisms? Amoeba. Yeah, great. Euglena. Yes. Euglena, Paramecium. Euglena. Yeah, Paramecium. Yeah. So we will be having now first is unicellular organisms, and also we will have to look about the
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिखा तो प्लीज मुझे बताना। आई गेस विजिबल है। हाँ मैम विजिबल। मैम घोड़के है, यू कांट हियर मी। अभी सुनाई दे रहा है? अच्छा हाँ, सिंपल बाइनरी फिशिंग। फिर सेकंड क्या है? सेकंड बोलो, सेकंड टाइम अभी हमने क्या डिस्कस ट्रांसवर्स किया? बाइनरी फिशिंग। ट्रांसवर्स बाइनरी ट्रांसवर्स। फिशिंग एंड देन सिंपल में लॉन्जिट्यूडिनल। सिंपल का एग्जांपल क्या होगा? सिंपल का एग्जांपल? सिंपल का है अमीबा। नहीं नहीं पैरामीशियम, पैरामीशियम। एनी प्लेन, इसका आंसर है एनी प्लेन। मीनिंग क्या है? अच्छा, एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। हाँ, और ट्रांसवर्स का? ट्रांसवर्स का है डिवाइड्स बाय, पैरामीशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशिंग। ओके, वैसे नहीं बेटा। ओके, हम लोग है ना मैम वो बोर्ड नहीं है। नहीं करते ठीक से। व्हाट एम आई आस्किंग यू, इसमें 3 टाइप्स है। वन इज सिंपल, फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा, ये है तुम्हारा अमीबा। इसमें कोई शेप नहीं है, कैसे भी होता है। अभी तो भी फिर मैंने सर्कुलर थोड़ा सा बनाया, बट इट इज वेरी 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 इरेगुलर, इतना भी नहीं होता है। इट कुड बी लाइक दिस, फिर यहाँ पे ऐसे, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो देर इज नो प्लेन एज सच। तो एनी प्लेन इट विल डिवाइड, है ना, एंड इट विल डिवाइड इट इनटू टू, यू नो, सेल। ऐसे थोड़ा ये कट हो जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा कट हो जाएगा। देन इन द नेक्स्ट स्टेप फिर और थोड़ा सा ऐसे, और फिर डिवाइड हो जाए। फिर टोटली डिवाइड हो जाएगा। एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक दिस। That is your first type, that is your simple binary fission। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद है, व्हाट इज द सेकेंड टाइप? सबको ट्रांसवर्स समझ में आ गया? सिंपल बाइनरी फिशन, यस सबको मिस। समझ में आया। इसमें सेकेंड टाइप है ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। उसमें व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रांसवर्स, वेराज इट डिवाइड्स। इसका एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। पैरामीशियम में 2 पार्ट्स हो जाते हैं। अभी इसमें तो हमने वैसे ही किया था, बट इसमें हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे होता है 2 पार्ट्स ऑर्गेनिज्म का, है ना, जो हमारा ऐसा है ऑर्गेनिज्म, और नेक्स्ट स्टेप में ये थोड़ा ऐसे हो गया, एंड देन इट डिवाइड्स in the same plane ऐसे, and then it forms 2 different organisms, then मैम that इससे is ज्यादा इरेगुलर शेप नहीं रहता ना किसका? पैरामीशियम रेगुलर का? शेप नहीं रहता, सेम रहता, बट अभी मैं सेम ड्रॉ रहता। नहीं कर पा रही हूँ सेम, बट दे आर सेम शेप। हाँ ठीक है, ओके। ओके। और नेक्स्ट है हमारा लॉन्जिट्यूडिनल। एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसवर्स में कैसे हुआ था हमारा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, अभी ये होगा लॉन्जिट्यूडिनल, ऐसे वाला, ये ऐसे ऐसे शेप में कटेगा। ठीक है, तो ये था लॉन्जिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स में जो भी रहेगा हाफ ऐसे कटेगा,
और अमीबा के शेप का अगर होगा तो कोई भी प्लेन में कटेगा, तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अमीबा ऐसे 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 होता है, तो वो कैसे भी कटेगा, ऐसे ऐसे कोई भी एक्सिस में कटेगा। दैट इज सिंपल। सिंपल में कोई भी एक्सिस, ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टल, और लॉन्जिट्यूड में एज द नेम सजेस्ट लॉन्जिट्यूड वर्टिकल। Vertical. ठीक है, तीनों टाइप्स इन बाइनरी फिशेस। समझ गए सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। नाउ वील डू द सेकेंड टाइप इन दिस। ये टू हम बढ़ा देते हैं, रोमन विथ मल्टीपल फिशन। एग्जाम्पल है Amoeba. अमीबा, दिस इज योर अमीबा, उसका ये सेल है, इसके आउटसाइड एक कवरिंग बन जाती है लाइक दिस, लाइक अ सिस्ट। देन द सेल डिवाइड इन द सिस्ट into many smaller cells, daughter cells, and during the favorable condition, the cyst will break open and the daughter cells will come out. That is it. That is your multiple fission. समझ में आया सबको मल्टीपल फिशन? Yes, Yes. ma'am. ओके, तो दैट इज द स्टेप्स फॉर मल्टीपल फिशन। उसके बाद है अगला वाला, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Unicellular organisms. अरे आप लोग नहीं बोलोगे, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। Okay, ma'am. म्यूट करूँ क्या सबको? म्यूट नहीं मतलब म्यूट हाँ मिस करो करो। चुप है. मैंने म्यूट किया अभी, तो कैसे नहीं होते तुम लोग म्यूट? ये पार्टिसिपेंट्स में आता म्यूट ऑल और डोंट अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू मैंने डोंट अलाउ भी किया, फिर भी तुम हो जाते हो, बाकी सब तो नहीं हो पाते, सिर्फ तुम ही हो पाते हो। कैसे Extra ऐसे? power. अब्दुल हदीज स्पेशल है तुम्हारा। हैक भी करा मिस लागतो। नहीं किया. हाँ, हैक किया तू? नहीं Don't do मैम, that, नहीं हाँ, आता बाबा। हैक कर रहे हैं, नहीं आता, सच्ची में पकड़ेंगे नहीं अपने को करता. कोई भी। नहीं सच्ची में नहीं करता मैम, ये अपन करता बहुत. अभी डोंट टॉक, वी जस्ट हैव 5 मिनट्स। 5 मिनट्स भी नहीं, बस 3 ही मिनट है। ओके मैम. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू बडिंग। बडिंग में ये तुम्हारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे राउंड है शायद, और फिर इसको थोड़ा सा बड आएगा, थोड़ा सा आउटग्रोथ है यहाँ पर। देन दिस आउटग्रोथ विल डेवलप and finally it will form 2 cells from this outgrowth. ये normal cell है, unicellular organism जो भी है, उसके बाद it will come over here with an outgrowth over here. You will see the outgrowth, that is the bud which forms the bud, and it will form new organisms, 2 new organisms. ठीक है? Yes? Yes मैम. Okay. Now what is the example for budding? It is yeast. Okay, the example for budding is yeast. ये समझ में आया सबको? This is the third type in this. समझा सबको? 3 ही टाइप से इसमें यूनिसेल्युलर। ग्रेट। अभी हम बात करेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। Okay, now in multicellular organisms, the first type will be fragmentation.
एग्जाम्पल क्या है? पायरोगायरा। और ये ऐसे होगा, तो इसका ब्रेक होकर 2 फ्रैगमेंट्स बनेंगे। So it will form 2 fragments. ठीक है, that is the example is Pyrogyra. इसमें 2 बनेंगे ये fragments. It is the example of multicellular organism. Fine, we'll go to the second type in multicellular. We have only 1 minute. हम अगर लॉग आउट हो गए ना तो हम फिर से कंटिन्यू करके ये 5 एग्जाम्पल करें। इसमें सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स है, 5 हम कर लेंगे। ठीक है, Arman, please mute. हाँ Arman, हाँ, he is unmuted. Some voice is coming like this. even you are unmuted.